So today we'll try to make a small application or game, whatever you may call it. Rock, paper, scissors. This is the interface. The user has to click on a particular icon. So mark his move. The user marks his move as thumb means rock. Computer will also mark his move. And whatever result come, display the result and increase the scoreboard of that user. Okay, play the game. Score will generate automatically. You can refresh anytime to reset the score, and you can also put the game on autoplay mode. So I played twice, and then I want to put in autoplay mode. Autoplay button is red now. Autoplay button turns to blue, means my game is now on autoplay mode. Okay. Now even if I stop the autoplay and if I refresh the browser, what should the score reset to? Does it reset to zero? No. Okay. The score is still there in the session memory. Okay. It's called local storage. So you have a local storage object in the browser, and I can open this. This is not specific to any tab also. I can open it in any tab and it will work perfectly fine with the current scores. Okay. It's stored in the local storage, means store it in the browser memory. Make sense? Reset and you can play. So this is what you're going to make. Let's start. So sequence by sequence, step by step, I'll prepare them. Okay. So I have made it over here for you guys. Okay. Rock, paper, scissors, and just 1, 2, 3, 4, 5 different versions we have. So let's try to make this. Uh, okay. So this is our, what do you call, JS project. Okay. So let's make rock, paper, scissors version 1.html. डाल दिया इसको, क्या डालना? Okay, exclamation, hit enter, go to the script. All good. Okay, first basic, let's start with basic buttons. So how many buttons do I need to have on the interface? In the interface, right? So button, I just have 3 buttons initially. So one button for the rock move, one button for the paper move, I'll have it all capital, and one button for the scissors. Okay, so control S and keep on checking the output periodically. Okay, so far so good. Okay, then when I click on the rock, so I'll say on click, so we can run a function. So let's say I'll say call which function? Play game. So I'll call this play game function on the click event of all of them. So what will I have in the script? I'll have a function by the name play game. And what will this play game function do first? Will take the move of the computer. Okay, so I'll say let
computer move equals to. So let me make a generate computer move method. Generate computer move. So I have a method called as. So who's calling that method? Play game function. Okay. So what I'll do is I'll take a random number math dot random. Okay. And I'll just console dot log that my random number. So let's check. Okay. And I'll open the console also. Console is there. Refresh. So when I click on any of the button, the function is getting called and random number is being generated, right? Right? The random number is between 0 and 1, right? So then I'll check is okay. So measure twice, cut once. Always first log on the console and check whether that function is working or not. So is a random number function being generated? So first check on the console and I will check if my random number is less than or equal to 1 by 3. I'll return rock. So what did the computer move? Else if my random number is greater than 1 by 3 but is less than 2 by 3. What will I generate? Return what? Computer played paper. Okay. And else I'll say computer played scissors. So I'll take these spellings only so that there is no conflict in the spell. And now whatever I was checking, I'll console.log and computer. So let's rock. So the number came between 0.08, right? Is less than within the first one third, right? First. So what did the computer play? Rock. I play rock. Computer again. Computer played 0.79. So is it less than? It falls on the last, right? Above 0.66, correct? So yes or no? And the button which I am clicking, I'll pass that as my caption parameter to the method. So now I have got both the moves. Okay, so here this will come into which variable? Player move. So I have got computer move also and I've got player move also. So let me display computer. Okay, so let me display computer move is computer move and player move is player move. Alright, let's increase this space a little bit more because we need sufficient space over here. Okay, so let's try to check this out if it's working fine. Control S. I click on rock.
Computer move rock. Right? This is what? Sorry, this is player move. So control S. I click on rock. So computer generates rock and player also generates rock. I click on paper. Computer gets this number, that is rock, and I click on paper. Okay, working fine. So now this is too convoluted. I'll make it into backtick. I prefer backtick. So computer move. This is a variable. So variable and player move. No need to give in single quotes. One single string and much better. Okay, and close the backtick. Right. All good. So now computer move scissors. Okay, there's a single quote over here. Control S. Computer move rock, player move paper. So I want to put it like this. Give a pipe in between and give this like this at both ends. So player move and a pipe and computer move. Rock, computer move paper and player move rock. Computer move scissors and player move rock. So who won? Okay. So what I'll do is I'll switch the player move. I'll switch the player move. So player move can be which all options? Rock, paper, scissors. So I'll have a case each for rock and so be very careful with this because these are cases, right? If it doesn't match, the will not get expected output. So if the player has moved rock, then what do I do? I also switch the computer move. So what will the computer move now? Okay, the computer can also move rock and computer can also move these two. And this is my first switch, so I'll break it. Correct? Then again I'll copy this and put it for paper also and break it. And again I'll put it for scissors and I will break it. There is no fourth option, so let it. Got it? So I'll take a let and result. Initialize it to empty single quotes. So what is the result? Empty. So if the player has, now we are looking from the angle of the player. If the player has played rock, computer has played rock, what will be the result? Result will be, I'll take all in capital, okay? And I will break, okay? Every case should have a break. So remember this. If the player has moved rock and the computer has played paper, player has played rock, computer has played paper. Who wins?
Paper wins. So here I will say loss. Player has lost, right? We are looking on the player's angle. And player has played rock and computer has played, so player win. Take all in capital, let's say. Make sense? Now same thing apply for these three cases over here. Player has moved paper, computer has played rock. So player has won, win. Paper, paper, and I played paper, computer played scissor. I lost. Correct? Copy this and paste it over here. I played scissor, computer played rock. Loss. Computer, I played scissor, computer played paper. I and once this outer switch, this is the outer switch case, right? We can console.log our result also. Okay, and what is now let's check. It says you moved, computer moved, and I moved, and I won. Now what am I moving? Paper. So it said player moved and computer moved. Who won? So I lost. I move scissors. Computer moves, so I lose. And this will continue execute. Make sense? I'll use this backtick over here again now. Backtick. Okay. Now I want to display the scoreboard. I want to display the scoreboard. Now what to do then? So I'll take a score as a object, which will keep count of wins, count of losses, and count of okay. So let score equal to right. Let score equal to an object which has win, loss, and tie. Correct. So if I console.log, so I'll take it up. Okay, I'll take it at the top where I'm declaring all the variables. Okay, and if I display the scoreboard right now before anything, scoreboard, तो क्या आएगा? विंस कितने हैं? विंस कहाँ से आ रहे हैं? विंस कहाँ से आ रहे हैं? बोलो भाई. स्कोर के विंस से. लॉस कहाँ से आ रहे हैं? स्कोर के लॉस से. और टाई कहाँ से आ रहे हैं? स्कोर के टाई. इसके लिए बैकटिक अच्छा है. तो स्कोरबोर्ड आ गया. विंस कहाँ से आ रहे हैं? स्कोर के विंस. क्या आएगा? विंस कितने हैं शुरू में? 0 है. लॉस कितने हैं शुरू में? 0. और टाइस कितने हैं शुरू में? 0. ठीक है. बैकटिक क्लोज कर. ठीक है. ये स्कोरबोर्ड हो गया. कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं. और तो स्कोरबोर्ड क्या है? 0 0 0. अभी क्या बढ़ गया? टाई. तो क्या हो जाना चाहिए? 0 0 1. फिर अभी लॉस हो गया तो क्या चाहिए?
0 1 1, है ना? जैसे तो मैं गेम कर रहा हूँ, स्कोर बदलना चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देंगे, स्विच कर देंगे रिजल्ट। क्या कर देंगे, स्विच क्या कर देंगे, रिजल्ट। तो अगर रिजल्ट लॉस है तो क्या बढ़ेगा, स्कोर डॉट लॉस प्लस 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 होता ना। हाँ भाई, होता है ना ऐसा, क्या, प्लस प्लस इक्वल टू 1 कर दो। चलो ऐसा कर लो, और फिर ब्रेक, ये ब्रेक करना भूलना मत, वरना ये बहुत अलग हो जाएगा, सब में जाएगा फिर वो। और विन आएगा तो स्कोर का विन +1, और टाई आएगा तो स्कोर का टाई +1। ठीक है, और फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, स्कोर दिखा देंगे ना। तो एक काम करते हैं, इसको एक फंक्शन में ले लेते हैं, डिस्प्ले स्कोर, है ना। उसको क्या पास कर देते हैं, स्कोर फंक्शन। क्या है, तो क्या ले रहा है वो, स्कोर, और स्कोर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जब हो जाए तो लास्ट में फिर वापस क्या कर देंगे, ये स्कोर कैलकुलेट के बाद वापस क्या कर देंगे, डिस्प्ले स्कोरबोर्ड, और क्या कर देंगे, स्कोर का। सही है, लेट्स डू। रॉक खेला तो कंप्यूटर ने पेपर खेला, कौन जीत गया, कंप्यूटर जीत गया, और एक लॉस का काउंटर बढ़ गया। सीजर्स खेला और कंप्यूटर ने भी, और लॉस क्या हो गया, ओके। तो वो रिफ्रेश हो रहा है ना बार बार, हर बार गेम पे क्या हो रहा है, वो रिफ्रेश हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ डालना पड़ेगा। सही है, रॉक, तो हर फंक्शन कॉल पे रिफ्रेश हो रहा है ना वो। सही है, बेसिक वेनिला फ्लेवर हो गया, सीरीज 1 हो गया। So we are able to display successfully on the console. Now I want to display this on the browser. Let's take it level 2. So level by level we'll build the application. Okay, so this is RPS 1. I copy it and I paste it. I got a RPS 1 copy. I'll call it RPS 2. Let's check if RPS 2 is working fine or not. So okay, this is again I need to go to RPS 2. Okay, let's check whether RPS 2 is working fine. I'm at RPS 2. Let me open my console and paper, rock, blah, blah, blah. Working fine. So far, so good. So let's come to RPS 2 now. Now I want to display this on the web page. So tag, P tag, and one more P tag. Make sense? I'll give them ID. This ID is, first what are we displaying? First we are displaying the moves, right? So we'll say ID for moves. Then what are we displaying? Second, ID for the result, right? Yes or no?
So I will go to JS. So I'll annotate all my classes which I'll use in the JS as JS moves. So JS move, JS result, and this will be JS scoreboard, right? Now nothing is there inside the inner HTML. Let's come down. Okay, so you can come at the end or wherever you wish to come over here, right? After we are doing the display scoreboard, we'll come over here. So I'll fetch all the, so let the move element, okay, move paragraph element, okay, equals to, how will I fetch that? Yes, guys. Yeah, I'll go with query selector most of the time. So document dot query selector or select selector all. Why would you go for all? हाँ एक है ना. Then hash का क्या? Hash है ना. और क्या है? क्या नाम दिया है उसको? JS mobs 2 दिया है ना. तो वो उसमें आ गया. ऐसे ही तीनों को ले लो. ये क्या था? रिजल्ट पैराग्राफ एलिमेंट. और ये क्या था? स्कोरबोर्ड. ठीक है, ये कैसे आता? JS रिजल्ट और स्कोरबोर्ड ना. बी वेरी स्मार्ट इनफ. स्पेलिंग कॉपी पेस्ट ही कर लेना भाई, मैं तो ये एडवाइस करूंगा. अनफोर्स्ड एरर्स कम से कम रखो. सही है. अब मूव रिजल्ट को इनर HTML दे देंगे. कहाँ से देंगे उसको? मूव्स कहाँ से दिखा रहे हैं हम लोग? याद है वो जो लॉग हम कर रहे थे मूव्स को, ये है ना, ये है ना. तो ये जो पूरा का पूरा बैकटिक है, ये निकाल लेता हूँ यहाँ से. आपको लॉग करना है, लॉग भी करते रहो साइमल्टेनियसली. वो यहाँ दे देता हूँ. ठीक है. और फिर रिजल्ट का जो था उसका HTML कहाँ से लाएंगे? ये रहा है ना. लॉग कर रिजल्ट लॉग कर रहा हूँ ना मैं, तो उसका बैकटिक यहाँ दे देंगे. और तीसरा क्या था? कोर कोड. उसको हम कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं? डिस्प्ले स्कोर बोर्ड में, राइट. तो उसको क्या करेंगे फिर अभी? अब वो अक्रॉस मल्टीपल हो रहा है वो, राइट. तो इसको लेट यहाँ नहीं करेंगे, फिर उसको ग्लोबल लेट कर देंगे जैसे यहाँ पर किया हमने, है ना. स्कोर भी तो मल्टीपल जगह है ना. तो उसको यहाँ डिक्लेयर कर देंगे ताकि उसका स्कोप बाहर हो जाए, है ना, ताकि उसको हम वहाँ रेफर कर सके, राइट. तो अभी क्या करेंगे? स्कोर बोर्ड में डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो क्या कर देंगे? ओके, तो ये यहाँ से उठा लेते हैं. और क्या नाम है उसका? क्या एलिमेंट का दिया हमने ऊपर? स्कोर बोर्ड पैराग्राफ एलिमेंट, राइट. डॉट इनर HTML. क्या? ये पूरा जो बैकटिक है. फिर आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग को, और रखना है तो रख सकते हैं. कंट्रोल S किया. आ रहा है? यस, नो, मे बी. मेक सेंस, राइट. कोई प्रॉब्लम? सही है. So every time, as my screen shared, guys, every time I do a refresh, the score sets to 0. The score resets to 0 every time I do a refresh of the web browser.
I don't want to do that. So I want to take my score and store it in the browser's memory, called as local storage. Called as local storage. तो उसका एक मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो मैंने बनाया है, दिख रहा है, ध्यान दो भाई। तो लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है लोकल स्टोरेज, हेल्प्स टू मेक द ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट। सो आफ्टर पेज रिफ्रेश द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट फ्लश्ड। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को परसिस्ट करना है ताकि रिफ्रेश पे उसकी वैल्यू लॉस ना हो, तो क्या कर दो, उसको कहाँ डाल दो, लोकल स्टोरेज में डाल। लोकल स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ द वेब स्टोरेज एपीआई that allows you to store data in the browser percent, तो वो मेरे ब्राउजर में स्टोर हो जाता है। अनलाइक कुकीज, ठीक है, इनका कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता। कुकी का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। कुकी का कॉन्सेप्ट ये है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग इन द क्लाइंट साइड ब्राउजर, बट कुकी कम्स विद अ एक्सपायरेशन डेट। थैंक यू मैम। कुकी कम्स विद अ, इसी बंद है, नहीं आवाज आ रही है मैम, हाँ ठीक है, ठीक है, बॉट वन एक्स्ट्रा। सो लोकल स्टोरेज का देर इज नो expiry. If you wish, you can clear the local storage or you can remove the message. Okay, I'll do that. Okay. A local storage is not scoped to the current tab. करंट टैब पे भी वो स्कोप नहीं है, वो उस ब्राउजर में आप अलग टैब में भी खोल के उसको फेच कर सकते हो, ठीक है। so now how do we set the item? Local storage dot set item. What is the key and value? Key is whatever message you want to. So now if I want my scoreboard to persist and not after every refresh, I don't want it to set to 0. See, it's now, as I do a refresh, it resets to this. What will I do now? So I'll take a copy of this now. Okay, so I'll take a copy of this, and for we'll make RPS3. RPS3 आ गया. Okay. So what I'll do is, whenever I get my score, once I calculate my score, what I'll do is I'll add it to the local storage. One more thing. Local storage, you have to give the key and value. Key and what is the key? What is the value? This object will be stored in the, and if I want to read it, I will say what? Get item. Okay, but now I want to store my score object. And local storage, the key should also be a string, value should also be a string. Okay, local storage only supports if you need to store any object, we need to convert it to string first by using JSON dot stringify. So what I'll have to do now? So I'll say what? Local storage. Okay, got it. Dot set item. By what key will I store it as? Score. And which object? Which object will you score it? The score object, right? So how to do that? JSON dot stringify which object? The score. So now this will be stored on the local storage. So whenever now I will fetch the object, from where will it fetch the object from? So if there is no value, initialize this. Okay. So now what I'll do is I'll now whenever I will fetch the value, this is to add, right? Set item, and to read what it is, get item. So see what I'll do now. So I will try to do this. Local storage
dot get item. Which one? So for the first time when it does, for the first run, will it get any value? No, all zero. So that will be undefined. That will be what? Undefined. So I will say if you have value from there, take it from there. If not from there, take it from here. So when I hit for the first time when I hit, you'll go to local storage and get me score. So will it get anything? Undefined. So undefined, nothing will come. Then it will go over here and we'll make a score object with win zero, loss zero, and tie zero. And then it will store the object in local storage. Next time when I will get, will it have the object? Yes, it will have the value. So it will fetch it from there, not from here. Making sense? So let's try to check this out. So I made changes in RPS3, right? I made changes in RPS3. So I'll stop it and I'll go live. RPS3, right click, inspect, console. So play. So it is showing me 1 0. Okay, all good. And now this value has been set where it is being set in the local storage. Now as I do a refresh and I play again rock, okay, what it is telling? It is showing undefined. It is not able to store this. So local storage dot get the item for score. Okay, so set item या score and stringify हो गया, display scoreboard हो गया. जब next time जब refresh इसको किया है तो वो let local storage से item score लेके आ रहा है. वहां से कुछ भी नहीं आया, यहाँ से आना चाहिए था तो उसमें undefined नहीं आ रहे हैं. ये यहाँ पर इसमें stringify dot score yes and get item भी हम लोग score ही दे रहे हैं ना. Yes, local storage dot get item score. I have one, but it is showing all undefined. Right. Let's try to paste this score now over here inside the play game function. तो स्कोर कब दिखाएगा वो? जब मैं प्ले गेम करूंगा तब. कंट्रोल एस शायद यहाँ पर होता होगा. अभी भी वो ऐसे ही दिखा रहा है. रिफ्रेश किया, नहीं दिखा रहा है. Let's check. Okay, so when we refer chat GPT, we want passing that, right? So when you read stringify and pass, right, we had done that. So take the local storage object score and pass it back to a JavaScript object. Now let's say, now save it and now let's refresh it. Okay, still, हाँ, okay, play game में डाल दिया क्या? इसको बाहर डाल दिया. Let's take it over here. Let's revert to its original place. Let's save it. Still JSON.parse and local server get item. Yeah, now why is it troubling? So what ChatGPT is suggesting is make a function by the name getScore, and we are initializing the, so in return take it from local storage. If you get it from there, well and good. Else return this 0 0. And whenever you have to initialize it, do what? Call. Okay. So whenever you want to initialize it,
Let's call it. So where I have to initialize it? Inside, right? So ये निकाल देंगे. तो यहाँ पर let's score. Okay, so let get score ये हो गया. बाकी सब ठीक है. So let's check if this works or not. So get score कर दिया. तो let's check if this works or not. Why is it showing undefined? I'm not understanding. Scorecard wins, undefined loss, undefined. हम लोग स्टोर नहीं कर रहे बराबर क्या? रिजल्ट आ गया हमारा और फिर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम स्कोर कर रहे हैं सिंगिफाई स्कोर करके. चैट जी. हाँ, स्कोर शोइंग undefined. Score is showing undefined is most likely because the score is not being initialized properly in local storage or is being incorrectly retrieved. In your current setup, you are using set get score to fetch the score, but the local storage doesn't have a value yet. It means undefined. So it says initialize the local storage first. Let score equals to सेम ही तो है. ओके, ये ऐसे बोल रहा है कि हाँ, तो ये उसी का फास्टर वर्जन है. ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये उसी का फास्टर वर्जन है. लेट स्कोर इक्वल्स टू दिस. और अगर वहां से कुछ भी नहीं आए तो फिर स्कोर को ये बना दो. If not score, then set the score and then you add the score. Okay, then you add the score to the and then you return the score. It is telling this much. ऐसा करो. क्या हो रहा है ये किसका है? इसका है. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये. गेट स्कोर के पहले कहाँ से फेच करो. फेच कहाँ से करना है? तो फर्स्ट टाइम पे मिलेगा क्या? तो अगर वो नो नॉट स्कोर आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या कर दो, उसको इनिशियलाइज कर दो उसको. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे फेच किया तो फॉल्स आ गया. नॉट फॉल्स मतलब ट्रू है, तो अंदर स्कोर को क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो और फिर इसको स्टोर को सेव कर दो स्टिगिफाई करके और रिटर्न स्कोर कर दो. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं फिर अभी इसको गेट स्कोर कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. annotate properties heading win. What happened now? विन नहीं कर पा रहा है. विन हुआ है वो. तो यहाँ पर ये स्कोर डॉट विन है, इसको +1 नहीं कर पा रहा है. तो ये स्कोर, हाँ, गेट स्कोर तो हुआ है. उसका जो सेट आइटम स्कोर और जिस नॉट सिंगिफाई स्कोर, रिटर्न द स्कोर, गेट स्कोर. हाँ, अब ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसको, पर वो वैल्यू फेच नहीं कर पा रहा है नंबर 91 पे. जब वो उसको रीड कर रहा है यहाँ पर. ओके, अभी ये फंक्शन अलग हो गया ना. तो डिस्प्ले स्कोर बोर्ड को स्कोर पास किया है आपने. तो डिस्प्ले स्कोर बोर्ड किधर है?
यहाँ पर है डिस्प्ले स्कोर बोर्ड। डिस्प्ले स्कोर बोर्ड एक बार गेट स्कोर कर दिया, फिर ये वापस, हाँ सेट कर दिया ना हमने एक बार, है ना। तो लेट मी कमेंट दैट आउट नाउ। नहीं कर रहा हूँ वो, कैप्शन रीड नहीं कर पा रहा। लोकल स्टोरेज का ही इशू आ रहा है। Okay, let's park this local storage for some time. Let's come back to our episode 2. We'll see the local storage. Now let's try to add some images over here. Okay, so I'm stopping this RPS2 and I'm reverting back to the second flavor of RPS. This was working fine, right? We'll see local storage later on. Now I want you all to add some images over here. Improve the UI. So what will we do now? So this RPS will paste and we'll rename to RPS3, not 3, 4। 3 को छोड़, RPS4 आ गए। अब यहाँ पर मुझे ये रॉक नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे? इमेज चाहिए। तो फिर तो जो मेरे RPS के वर्जन्स थे अलग अलग, देखते हैं इसमें वो है क्या। इसमें भी देखो सही था, स्कोर इज इक्वल टू नल, ऐसे ही लिखा था देखो मैंने। मेरे सबसे फास्ट दिया था देखो, जेसन डॉट पास लोकल स्टोरेज गेट आइटम्स माई स्कोर। क्या वो कीवर्ड से तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा था कि अपने दोनों जगह पे स्कोर स्कोर ही दिए थे? चलो ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। कोड तो तकरीबन सेम ही है। Let's take the fourth version and check now. Okay, now here you have got the, so now using the instead of using the rock text, okay, I'll put a image tag over here. Okay, an image tag the self closing. And how do we add that? src equals to, now where is the images folder? Dot one step behind I have RPS, so dot I have images. In that images take which one? Paper emoji, right? Which one? तो रॉक है क्या? ये एक इमेज बन गया, ठीक है। तो ऐसे बटन ऑन क्लिक है, उसके अंदर एक इमेज डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही यही इमेज पेपर निकाल देंगे, इमेज डाल देंगे, सीजर्स निकालेंगे और तो कंट्रोल स्पेस बार कौन सा? पेपर इमोजी और कंट्रोल स्पेस बार सीजर्स इमोजी, ठीक है। लेट्स कंट्रोल एस इट and this is our browser. No, now we add RPS4, correct? Go live. Okay, correct. Code is working. So if you want to design this further, I have given a class over here as move button. Which class?
These are all move buttons, right? These all three are move buttons, correct? So to the image, to the button we have given the class. The button we have given the class as move button, on to the class already here other, and to the image we have given what? Move icon. यहाँ पर है ना? सही है, तो हर इमेज को क्या है, क्लास किसकी है, और हर बटन को क्लास क्या है, राइट। अब ये दो क्लास लिखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर वो क्लास लिखी हुई है, मूव आइकन और मूव बटन, ठीक है। तो मूव बटन ले लिया, तो कहाँ जाओ, आपके हेड में, और स्टाइल क्लास मूव बटन लिख दिया, और क्लास कौन सी, मूव आइकन भी लिख दिया। डू कंट्रोल एस एंड लेट्स चेक। ये ऐसा, इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, साइज थोड़े छोटे हो गए, ठीक है। ओके, तो जो बॉडी है उसको कुछ दिया होगा, बॉडी को कौन सा दे दिया है, डिव गेम एरिया, सेंटर दे दिया, और क्या दे दिया, गेम एरिया क्लास दे दिया। तो कहाँ दे देंगे, सेंटर टैग एंड गेम एरिया, ऐसे ही क्लोज करते हुए करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर वो स्क्रिप्ट के पहले दे देंगे, ठीक है। डिव कौन सा, क्लोज स्लैश डिव, क्लोज करते हुए देने की जरूरत नहीं है, ओके। और सेंटर को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। सेंटर से डेप्लीकेट हो गया है क्या, कंट्रोल एस। ओके, ये क्लास है क्या हमारे पास, गेम एरिया, तो गेम एरिया क्लास बना दो एक, ओके। ये सब कॉपी पेस्ट ही कर लो, कंट्रोल एस, ओके। ये ऐसा गेम एरिया बन गया। ये बाकी जो लेबल्स हैं इनके स्टाइल वगैरह बाकी है अभी, बाकी जो ले ये है ना, पी टैग्स, इनको भी स्टाइल दे दो। तो पी टैग्स को स्टाइल क्या दिया है, प्लेयर मूव, वो तो जेएस में रीड करने के लिए, स्टाइलिंग के लिए कौन सा है, क्लास प्लेयर मूव, तो हमने दिया है ऑलरेडी। और गेम रिजल्ट और स्कोर बोर्ड, ये आईडी है ना, ये आईडी है, अपने को क्लास देना है, आईडी है ना, इसको बस छेड़ो, क्लास करना पड़ेगा। क्या क्लास है इनका, प्लेयर मूव, राइट। क्लास प्लेयर मूव, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। गेम रिजल्ट एंड स्कोर बोर्ड, राइट, and take them also from the top, which are they, ये तीनों ना, तीनों का एक ही स्टाइल है, कंट्रोल एस, तो बॉडी का, ये वाइट जो है ना बॉडी से होगा शायद, वाइट जो है ना दिख रहा है कलर वाइट, वो कहाँ से है,
बॉडी से देना पड़ेगा। ठीक है, हो रहा है। अब इनको चेंज करना है, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पेपर का इमोजी, और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, सीजर्स का इमोजी, है ना। फाइनल में आपने देखा था, अपन ने ये देखा था, क्या देखा था स्टार्टिंग में आते ही, दिख रहा है क्या आ रहा है, ये भी इमोजी है, ये भी इमोजी है, तो यू के बाजू में क्या आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया इमेजेस, ये तीनों इमेजेस हो गए। ठीक है, रिसेस स्कोर का बटन आ गया, और ये ओके, ये तो फाइनल वर्जन नहीं है ना, ये फाइनल वर्जन नहीं है, तो फाइनल वर्जन तो 5 है, उसमें होगा सर, उसमें और होगा, और चेंजेस हो गए उसमें। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये जो प्लेयर, कौन सी क्लास है ये, जेएस प्लेयर मूव, तो क्या कर रहा है जेएस प्लेयर मूव, जेएस प्लेयर मूव में देखो क्या किया मैंने, कोई सेलेक्टर से वो उसको फेच कर लिया क्लास को, तो वो पी टैग किस में आ गया, मूव्स में आ गया, और उसका क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, इनर एचटीएमएल, कैसा दिख रहा है, यू, और एक इमेज दे दिया उधर, क्या दे दिया, ओके सी आर जस्ट मिनिमाइज दिस। देखो जो हमारा मूव्स है ना, मूव्स, मूव्स कौन सा पी है, यह ध्यान दो गाइस, मूव्स वाला पी कौन सा है, जेएस प्लेयर मूव, करेक्ट, उसको नीचे फेच कर लिया इधर, जेएस प्लेयर मूव क्लास, तो वो पैराग्राफ कौन से वेरिएबल में आ गया, उसको मैंने टेक्स्ट लिखा था प्लेयर मूव वो सब, अब मुझे वहां पर भी इमेज चाहिए, तो क्या कर रहा हूं मैं, यू, है ना, यू मतलब प्लेयर ना, प्लेयर मूव, प्लेयर मूव क्या है, एक पहले पहले क्या लिख के आ रहा था, रॉक लिख के आ रहा था, जो मैंने ऊपर पैरामीटर पास किया, अभी क्या लिख के आएगा, एक इमेज बनाएंगे, इसमें इमेजेस में, तो जो मेरी इमेजेस है, आप उसका नाम देखो, इमेजेस में है, इमेजेस में, तो क्या नाम है, पेपर इमोजी, रॉक इमोजी, और सीजर इमोजी, है ना। तो यहाँ पर जो ये प्लेयर मूव है, तो वो रॉक है, रॉक हाइफन डॉट पीएनजी, और उसको एक क्लास लगा दिया ताकि वो स्मॉल दिखे ना कंपैरेटिवली, स्मॉल मूव आइकन, समझ में आ रहा है। तो अभी सिर्फ ये वाला खेल खेलना है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है आरपीएस 4 में, वी ऑलरेडी हैव दैट पार्ट मेंशन्ड ओवर हियर, योर मूव एंड कंप्यूटर मूव, राइट, मूव पैराग्राफ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट लिख रहा था, अब मुझे टेक्स्ट नहीं लिखना है, अभी मुझे क्या देना है, इमेज देना है, तो कंप्यूटर मूव का क्या है, क्या दे रहा हूँ मैं, एक इमेज टैग दे रहा हूँ, करेक्ट, सेल्फ क्लोजिंग इमेज टैग, ठीक है, और उसके लिए मैंने कौन सी क्लास बनाई है, कौन सी क्लास बनाई है हम लोगों ने, स्मॉल मूव आइकन, दिख रहा है, कौन सी क्लास है, तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं, राइट, तो ये डबल कोट्स में देंगे जो क्लास का नाम, तो कौन सी क्लास है इमेज के लिए, एक इमेज बनाया क्लास स्मॉल मूव आइकन की, इसके लिए भी, और अभी यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, क्या आएगा, एक इमेज आएगी, ओके, अब उस इमेज की इमेज कहाँ से आने वाली है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है एसआरसी भी, यस, एसआरसी
इसकी भी आएगी। तो इसकी एसआरसी अभी कौन सा प्लेयर मूव कौन सा है ये? प्लेयर मूव वेरिएबल के अंदर है ना? प्लेयर मूव जो है, और ये कंप्यूटर मूव है, तो कंप्यूटर मूव कौन से वेरिएबल में है? कंप्यूटर मूव। ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो भी इसका नाम होगा, कंप्यूटर मूव होगा तो कंप्यूटर मूव होगा। ठीक है। आई एम पुटिंग अ डॉलर, तो कंप्यूटर मूव, तो क्या आया इसके अंदर? रॉक आया। रॉक। और रॉक वाली इमोजी का नाम क्या है? तो उसमें क्या जोड़ रहा हूँ मैं? इमोजी डॉट, ओके। प्लेयर मूव क्लोज कर देंगे। प्लेयर मूव को क्लोज कर देंगे यहाँ पर। हाँ, देखेंगे उसका पाथ भी लेना पड़ेगा, राइट? तो कहाँ से आएगी वो? डॉट डॉट स्लैश, ओके, यहाँ पर ना यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश, कौन सा आ रही है? इधर नहीं आ रही है। तो वो पाथ कैसे आ रहा है? एस आर सी इक्वल्स टू एस आर सी, ये इधर आ गया थोड़ा, यहाँ करते डॉट डॉट स्लैश, नहीं आ रहा इसमें। नहीं, एस आर सी कहाँ पर आ रही है? और ये बैकटिक हो गया ना, तो ऊपर से ले लेंगे। ऊपर था ना ये, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। रॉक निकाल देते हैं सर। ठीक। आई एम कंस्ट्रक्टिंग द एंटायर एस आर सी डॉट डॉट स्लैश इमेजेस रॉक, इसमें जो भी रहेगा उसका इमोजी डॉट पीएनजी। हाँ, क्या इनपुट से? हाँ हाँ, सेम। हाँ, चलेगा, तो क्लास का नाम में इशू नहीं आता। अब ये कॉपी कर रहा हूँ, पूरा का पूरा इमेज टैग ले लेते हैं, राइट? तो इमेज टैग उठा लेते हैं यहाँ से, स्टार्ट से एंड तक इमेज टैग उठाया पूरा। इमेज टैग स्टार्ट से एंड तक उठाया, पेस्ट कर दिया, और क्या कर दिया इधर? प्लेयर मूव। और चूंकि ये स्मॉल आइकन हो गए, तो स्मॉल आइकन भी एक ऐड करना पड़ेगा, जो छोटा थोड़ा इमेज को छोटा कर देगा। स्मॉल आइकन, राइट? बाकी 70 है, तो मूव आइकन 70 है, तो स्मॉल आइकन कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेट्स चेक इफ इट वर्क्स। लास्ट वाला ये है ना, RPS4 दिख रहा है? समझ में आ रहा है डायनेमिकली कैसे हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, राइट? हाँ, यस, यू हैव टू स्मार्ट इनफ फॉर दैट। तो उसके लिए फाइल का नेम करना भी एक आर्ट है, फोल्डर का नाम देना भी एक आर्ट है। अभी जस्ट गिव स्पेसेस एंड अंडरस्कोर्स, तो प्रॉपर नाम दिया करो देखो ये, ठीक है? ओके, यहाँ पर मुझे चाहिए रिफ्रेश, ठीक है ना? तो चौथा बटन रिफ्रेश का था, या बटन में ना, तो बटन बनाया, तो रिफ्रेश का भी क्या कर देंगे? ये क्लास जो मूव बटन का साइज है वही साइज दे देंगे उसको भी, है ना? और इमेज कहाँ से लाएंगे उसका? और उसको भी मूव आइकन जितना बड़ा कर देंगे, ठीक है? कि तुम लोग जब बैठोगे सुकून से करने के लिए, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। रिफ्रेश, कंट्रोल S आ गया। रिफ्रेश में क्या करना है? रिफ्रेश में वो तो काम ही नहीं कर रहा ना कुछ, अपना देखेंगे।
तो उसके क्लिक पे क्या करेंगे, क्लियर स्कोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके क्लिक पे क्या फंक्शन कॉल करेंगे, क्लियर स्कोर। देखो स्कोर चूंकि इधर बाहर है ना, तो ग्लोबल स्कोप में है वो। स्कोर किस पे है, ग्लोबल स्कोप में है, तो सब जगह रीड कर सकते हो उसको। फंक्शन क्या है, क्लियर स्कोर। तो उसको वो काम करना पड़ेगा जो ऊपर शुरू किया है। लेट तो नहीं करेंगे, स्कोर इक्वल्स टू, ठीक है। क्लियर स्कोर करके डिस्प्ले स्कोर कर देते, क्या कर देते, क्लियर स्कोर करके क्या कर देते हम लोग। हाँ, जैसे जैसे क्लियर किया ना, तो तुरंत वो स्कोर बोर्ड दिखा देगा जीरो। देखो अभी यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो वो दिखा देगा, वरना पहले क्या हो रहा था, रिफ्रेश हो रहा था जब प्ले पे का स्कोर दिख रहा था। ठीक है। अब जो है इसको ऑटो प्ले पे डालना है, कितना डालना है, ऑटो प्ले पे डालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ले लेंगे वापस, बटन यही ले लेंगे जो इसका वाला है। और ऑटो प्ले का अपने आए वो नहीं है ना, तो बटन पे ऑन क्लिक पे ऑटो प्ले, ठीक है। और क्या बनाएंगे, ऑटो प्ले, कंट्रोल एस, ये आ गया नीचे। और इसको भी अपने डिजाइन किया होगा ना, ये है ना, ठीक है। ये ले लेता हूँ पूरा, ठीक है ना, ये पूरा ले लेता हूँ। तो एक बटन बना लेते हैं ऑटो प्ले, इस पे क्या फंक्शन कॉल होगा, लास्ट में आगे लिख देते हैं। ये फंक्शन के अंदर है ना, फंक्शन क्या, ऑटो प्ले मोड, ठीक है, ये फंक्शन लिख दिया। और अभी क्या क्या किया है उसने, क्लास बनाई है, ये तो जावा स्क्रिप्ट के लिए है, और इसके किसके लिए है, CSS के लिए है ना। तो ये एक CSS सेटिंग होगी। तो देखो CSS क्या मिलती है, ये है, सही है। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ठीक है। ऑटो प्ले दिख रहा है, राइट। जब उस पर क्लिक करते हैं तो किस पे जा रहा है वो, प्ले, ऑटो प्ले मोड, ठीक है। अब ऑटो प्ले मोड एक एक सेकेंड से खुद प्ले करेगा, तो क्या फंक्शन यूज करूंगा मैं, सेट इंटरवल, कितने सेकंड के बाद, एक सेकेंड। तो सेकंड पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट उसका एक एरो फंक्शन रहता है, या तो फंक्शन कॉल हो या तो एक एरो फंक्शन हो। और कौन सा फंक्शन कॉल करेगा वो, तो फंक्शन कॉल करेगा कौन सा, ओके। तो अब ये क्या करेंगे ना, क्या अभी अभी कंप्यूटर मूव भी प्लेयर मूव करेगा ना। अभी जनरेट कंप्यूटर मूव, पहले क्या मूव जनरेट कर रहा था, अब यही प्लेयर का करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यस, लेट द कंप्यूटर जनरेटेड प्लेयर मूव, ठीक है। एंड देन नाउ कॉल द प्ले गेम फंक्शन विद द
with the control s, लेट्स, ठीक है। अभी अभी तो मैं खुद खेल रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने ऑटो प्ले कर दिया, तो अभी मेरे लिए कंप्यूटर चूज कर रहा है। हाँ बस, जैसे यहाँ पर प्ले गेम जो है वो यूजर से वैल्यू ले रहा था ना, प्ले गेम क्या ले रहा था, प्लेयर मूव, और प्लेयर प्लेयर मूव में कहाँ से पास कर रहा था, जब मैं क्लिक कर रहा था हार्ड कोड पास कर रहा था, यहाँ पर कंप्यूटर मेरा चल रहा है, रिफ्रेश किया वापस जीरो से आ जाएगा। बट नाउ आई नीड टू स्टॉप द ऑटो प्ले मोड। तो ये जो मेरा सेट इंटरवल है, ये हर इटरेशन पे एक आईडी रहता है, इसका एक आईडी रहता है, क्या रहता है, उस आईडी को फॉल्स कर देगा, क्या कर देगा उस आईडी को। अगर मेरे पास अगर मेरे पास पांच सेट इंटरवल चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, तो हर सेट इंटरवल का एक आईडी रहता है, क्या रहता है, तो इसका एक आईडी होता है, तो वो काम ले लेंगे, लेट लेफ्ट में लेट सेट इंटरवल आईडी, ये हम लेफ्ट में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, तो यहाँ पर देखो उसका लॉजिक लिखा रहेगा। हाँ, टॉगल टॉगल का, ठीक है। तो फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल को मैंने पहले फॉल्स कर लिया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल हो गए, ऑटो प्ले मोड पहले फॉल्स था, इंटरवल आईडी ले लिया ताकि यहाँ इसको यूज कर सके अंदर, ओके। और ये अपना ऑटो प्ले बटन है, तो अपने को उसका कलर चेंज करना है ना, उसका कलर चेंज करना है ना, ऑटो प्ले बटन एलिमेंट जिसका कलर चेंज करना है ना, तो उसका मैंने आईडी बना दिया, ठीक है। अंदर आ गए, इसका आईडी ले लिया, ये जो वेरिएबल था ना इंटरवल आईडी, इसको यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब जो भी इसका इंटरवल आईडी है वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। और ये अपन ने गेम चला दिया, और अभी ऑटो प्लेइंग मोड किस में हो गया, ट्रू में हो गया, राइट। तो ये जो इज ऑटो प्लेइंग फॉल्स था, अभी क्या हो गया, ट्रू हो गया है, ठीक है। और अब ये जो मेरा ऑटो प्ले बटन एलिमेंट है, उसको फैच कर लेता हूँ मैं कहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या सा आईडी दिया है उसको, कौन सा आईडी कुछ दिया है क्या उसको, क्लास दिया है, क्या दिया है उसको, क्लास कौन सा दिया है उसको, तो कैसे करेंगे वो, डॉट, ठीक है। वो आ गया, उसका मैंने ले लिया, ठीक है। और उसका फिर मैं जो स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, किसका, जिसका है ना स्टाइल, एक स्टाइल ऐड कर रहा हूँ उसको, तो उसको यहाँ से कर सकते हैं अपन, डॉट के ऐड कर रहा हूँ उसको, और यहाँ से नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैंने उसको फैच कर लिया लगा के, और उसका क्या कर रहे हैं, डॉट, हाँ वैसे वैसे कर सकते हैं अपन, डॉट स्टाइल, उसका डॉट स्टाइल का क्या चेंज कर रहा हूँ, स्टाइल का मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या दे रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर में ब्लू दे रहा हूँ या ग्रीन दे देता हूँ ताकि रेड और ग्रीन हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो ऑटो प्ले मोड चालू हो गया, ऑटो प्ले मोड ट्रू में आ गया, और उसका बटन का कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो पहले वो चेक कर रहा है कि ऑटो प्ले मोड फॉल्स था क्या, ये काम कर रहा है, ऑटो प्ले मोड फॉल्स है ना, तो ये वो चेक कर रहा है पहले कि ऑटो प्लेइंग मोड इज इक्वल टू फॉल्स, तो ये काम कर दो, ठीक है। फिर एल्स में कब जाएगा वो, जब वापस क्लिक करोगे इसमें, वापस क्या करोगे, जब वापस जब क्लिक करोगे इसको, तो किस में जाएगा वो, एल्स एल्स में जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस क्या कर देंगे हम लोग,
बस क्या कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। ठीक है। और ऑटो प्लेइंग जो था वो ट्रू था, वो क्या हो जाएगा वापस, टॉगल टॉगल हो रहा है ना, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जस्ट टॉगलिंग राइट। और हम लोग क्या कर देंगे उसको, ऑटो प्ले का जो इंटरवल क्लियर कर देंगे। यस, तो फंक्शन है क्लियर इंटर, क्या है फंक्शन, क्लियर इंटरवल फंक्शन है, क्या है, क्लियर इंटरवल। कौन सा इंटरवल क्लियर करना है अपने को, जो अपन ने यहाँ पर किया था। ओके, इंटरवल कर दिया और ऑटो प्ले बटन स्टाइल कर दिया ना अपन ने, बस उसका जरूरत नहीं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, लेट्स चेक इट आउट इफ इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, प्ले कर रहा हूँ मैं और ऑटो प्ले पे डाल दिया, रेड रेड हो गया, चल हागिर हो गया, तो ऑटो प्ले चालू है। वापस क्लिक किया, रेड हो गया, ऑटो प्ले स्टॉप हो गया, रिफ्रेश किया, सब क्लियर हो। सारी बात समझ में। अब ये लोकल ऑब्जेक्ट पे क्यों नहीं जा रहा है, मुझे जरा वो देखने दो, तो अपना टास्क क्लियर हो जाता है पूरा। तो देखो यहाँ पर क्या किया है उसने, शुरू में लेट द स्कोर इक्वल, जो जो अपन ने किए थे, क्या कर रहा है, लोकल स्टोरेज से कौन सा की लेके आ रहा है, माई स्कोर। सबसे पहले कहाँ किया है उसने, एकदम स्क्रिप्ट के नीचे, किसके नीचे, वही करते हैं अपन भी, स्क्रिप्ट के नीचे जाते हैं, इसको कॉपी करके पहले पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ तक तो अपन ठीक है। आरपीएस कॉपी किया, इसको क्या कर दिया, रीनेम 5 कर दिया, आरपीएस 5। ठीक है, आरपीएस 5 में आ गए, तो सबसे टॉप में आ गए इधर स्क्रिप्ट टैग के, देखो। ठीक है, और क्या कर दिया, एक स्कोर बना दिया, जेसन डॉट पास। अभी अपना की कौन सा है, माई स्कोर। ठीक है, की याद रखना, की क्या दे रहे हैं हम लोग, माई स्कोर दे रहे हैं, वो याद रखना अभी। और फिर ऐसा वेरिएबल दे लिया, तो ये कुछ आ गया। और जहां पर अभी हम लोग, ऑटो प्लेइंग मोड है, प्ले गेम है, प्ले गेम है। ठीक है, मतलब लॉसेज है। देखो जैसे ही मैं स्विच का वो क्या तो कैलकुलेट कर लिया उसको। ठीक है, जैसे मेरा वो स्विच खत्म होता है, वही अपन ने क्या था ना, उसको देखा इधर, यही क्या था ना अपन ने स्विच के बाद तुरंत क्या किया मैंने, आइटम कौन सा, और उसको स्कोर को मैंने कर दिया कन्वर्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर यहाँ अपन ने दिखा दिए थे सारे स्कोर। और रीसेट स्कोर भी अपना फंक्शन था, उसमें क्या कर दिया अपन ने, रिमूव कर देंगे ना उसको। रिसेट स्कोर था, उसमें क्या कर दिया था अपन ने, जो क्लियर स्कोर में से क्या करा था अपन ने, लोकल से को रिमूव कर दिया, है ना। ये अपन ने सिंपल सा कोड लिखे थे। अब इससे मुझे क्या लग रहा है डाउट, ये जो डिस्प्ले बोर्ड है ना, अब ये तो यही स्कोर यूज कर रहा है ना, जो ऊपर ग्लोबल है, तो उसको फिर अलग से पैरामीटर पास करने की जरूरत क्या है। जो डिस्प्ले स्कोर बोर्ड है वो तो ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा है ना, है ना, तो उसको फिर पैरामीटर पास करने की जरूरत क्या है, वो तो वही स्कोर को एक्सेस कर रहा है ना, नया थोड़ी स्कोर। समझ में आ रहा है, ये अपना जो स्कोर वेरिएबल है, ये किधर डिक्लेयर किया अपन ने, एकदम स्क्रिप्ट पे नीचे, और लेट से किया, तो क्या हो गया, ये ग्लोबल स्कोप में आ गया। तो जहां जहां पर स्कोर होगा तो वही वही होगा ना। तो अभी जब डिस्प्ले स्कोरबोर्ड को कॉल किया तो क्या पास किया उसको, कुछ भी नहीं, खाली कर दिया, तो वो आ गया डिस्प्ले स्कोरबोर्ड में। तो एक कौन सा स्कोर को एक्सेस कर रहा है वो, ऊपर वाला ना, हाँ वहाँ इशू था शायद, अपन ने अलग अलग वहां अलग एक्सेस कर रहे और यहाँ पास अलग कर रहे थे, है ना। इसके लिए वो लाइन यहाँ पर इशू बता रहा था। ठीक है, और ये क्लियर स्कोर को कुछ पास नहीं किया, उसने अपना स्कोर को ब्लैंक सेट कर दिया और लोकल स्टोरेज को कर दिया सेट, है ना। इसने वैसे क्या रहा, क्लियर स्कोर को देखो रिमूव कर दिया पहले, लोकल स्टोरेज से पहले रिमूव करने का। ठीक है, और फिर वापस स्कोर बना देने,
ठीक है, तो लोकल स्कोर से रिमूव भी कर दिया और वैल्यूज भी रीसेट कर दिए और डिस्प्ले स्कोर भी कर दिया। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू चेक दिस। आई गेस दिस शुड वर्क परफेक्टली फाइन एज पर एक्सपेक्टेशन। आरपीएस 5 है ना? आरपीएस 5 है। ठीक है, स्टार्ट किया, स्टार्ट कर रहा है 0 से, ऑटो प्ले पे डाल दिया, ऑटो प्ले भी काम कर रहा है, एक एक सेकंड से रन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश भी काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और अब जब ऑटो प्ले बंद कर दिया, अब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ और प्ले करता हूँ तो वहां से ही चल रहा है। ठीक है, ये था ना इशू हमारा। देखो ऑटो प्ले ऑफ कर दिया, करंट स्कोर क्या था? 676 था। ठीक है, अब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो 0 0 हो रहा है क्या? कहाँ से हो रहा है? 676 तो 776, क्योंकि मैं जीत गया, तो 676 776 हो गया। ठीक है, रिफ्रेश भी हो रहा है, ऑटो प्ले भी हो रहा है। ठीक है, वो इशू आ रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, माइस अननेसेसरी उसको अपना ग्लोबल वेरिएबल था ना, तो वापस पास करने की जरूरत नहीं थी उसको, तो वो उसको अलग वेरिएबल समझ रहा था। ठीक, तो वो तो कुछ नहीं उसके अंदर ना, वो अलग ही था ना, वेरिएबल था ना वो। तो अब तो अपना ग्लोबल वेरिएबल हो गया ना। अब अपना ये जो स्कोर है, इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल है, तो अब ये पूरे के पूरे स्क्रिप्ट में इसको यूज कर सकते हैं आप, कहीं भी कोई भी फंक्शन में। किधर? दिस कौन सा? हाँ बस वैसा कर सकते हैं, ट्राई ट्राई डूइंग दैट। तो अब इसको कुछ नया पास करने की, अब उसको वेरिएबल पास कर रहे थे इधर, तो वो ऊपर वाला स्कोर अलग था और ये वाला स्कोर अलग हो रहा था। ठीक है, तो ग्लोबल है तो उसको पास करने की जरूरत नहीं एज ए पैरामीटर। कैसे, क्यों क्यों जरूरत? ग्लोबल को एक्सेस कर रहा है ना वो, ये जो अपना स्कोर वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल हो गया ना, तो सारे फंक्शन इसी को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो भी मैं स्कोर कर रहा हूँ ये भी वही है, प्लेयर स्कोर में खाली है, कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले स्कोर बोर्ड, तो का डिस्प्ले स्कोर बोर्ड की तरह नहीं, तो निकाल दो ना, जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेव करता हूँ और वापस, या बिकॉज इट इज एक्सेस लोकल, देखो ये गेम चल ही रहा है अभी तक। रिफ्रेश हो गया, डिस्प्ले स्कोर हो रहा है, ऑटो प्ले भी जा रहा है, ऑटो प्ले ऑफ भी हो रहा है, तो कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है अगर वो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है,